السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی، یہ خاص نشانیاں ظاہر ہوں گی، دوبارہ مل سکتے ہیں، اس لیے چیزوں سے زیادہ انسانوں کی قدر کریں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلے جھیلی ہوتی ہیں۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے واسطے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے واسطے دعا کر رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، جو آپ کی خوشی میں خوش ہو، کیونکہ ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، اور اگر گم ہو جائیں تو ایسے نقصان کا ازالہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھلا کون روتا ہے؟ بات احساس کی ہوتی ہے۔ انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہماری کئی خواہشیں ہمیں اندر ہی گھٹ کر مر جاتی ہیں، اور پھر بھی ہم اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر ہنستے مسکراتے ہیں، اور کسی کو اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم کتنے بدصورتی سے توڑے گئے ہیں۔ جب آپ کے منصوبے بار بار ناکام ہونے لگیں تو رک جانا چاہیے، کیونکہ تب اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اس کی جانب سے جب شکست کا فیصلہ آ جائے تو اس شکست کو ہی اپنی فتح سمجھ کر تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنی رضا ہار دیتے ہیں ان سے اللہ پاک نصیب کو کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد اور پیمانہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا، اکثر جہاں عہد پیمانہ زیادہ ہوتے ہیں وہیں رشتے جلد زوال پذیر ہوتے ہیں۔ جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ نہ تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور نہ ہی ہر بات کو جتاتے ہیں، بس خاموشی سے نبھائے جاتے ہیں، اور محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں یا کن حالات سے گزر کر آپ کا ساتھ نبھا رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پر ہوتے ہیں وہاں پر بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کر گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہیں ہنس کر گزارو یا رو کے، کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو بھی مت بننے دیجئے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ پاک اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، کسی کو وہ اذیت نہ دے گا جو اس سے برداشت بھی نہ ہو، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ پاک کب کہاں تمہارا دل بدل دے تم نہیں جانتے، مگر پھر یہ ہوگا کہ دنیا پیچھے رہ جائے گی اور تم رب سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہی اصل زندگی ہے، باقی سب فانی ہے۔ وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب عیا ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندھی امیدیں، راتیں، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ لوگ تمہیں تمہاری من پسند چیز تک تو پہنچنے سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ تو پھر تم ان چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تم چاہتے ہو، بلکہ تم اس کی طرف جاؤ جو تمہیں وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، اور وہ صرف اور صرف تمہارا اللہ ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ پاک کا قرب حاصل ہونا ہو۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ پاک ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائش سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ پاک تم تک
जल्द ही नामुमकिन जरियों से मदद भेजने वाला है। इंशाअल्लाह खुश रहना चाहते हो तो यह बातें अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, जो बात किसी और के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। हम पूरी जिंदगी इस इंतजार में निकाल देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद जिंदगी जिएंगे, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिंदगी वही है जो आज है, कल तो बस ख्वाब है। जिंदगी आपको मोहब्बत करना सिखाती है, तजुर्बा आपको यह सिखाते हैं कि किससे मोहब्बत करनी चाहिए, और हालात से आपको यह पता चलता है कि कौन आपसे मोहब्बत करता है। जिंदगी गुजारना नहीं जीना सीखे। हर इंसान की जिंदगी में दुख परेशानियां आती हैं, उनका इस्तेहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है मगर सुकून नहीं मिलता। जिंदगी के सफर में कभी भी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां मेहनत और डिग्रियां हार जाती हैं, किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। अगर लोग नमाज फजर का सवाब और फजीलत जान लें तो रात को इस खौफ से सोना छोड़ दे कि कहीं नींद की वजह से फजर की नमाज न छूट जाए। सुभान अल्लाह। अपने ख्यालात को साफ पानी से ज्यादा साफ रखें। जिस तरह पानी के कतरों से दरिया बनता है, उसी तरह ख्यालात किरदार और ईमान बनाते हैं। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान रहती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से लगाई हुई उम्मीद। जो कुएं से निकालकर हजरत यूसुफ को मिस्र के तख्त पर बिठा सकता है, भरोसा रखो वो रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हो तो उन्हें मत रोकें, वालिद, बच्चा और गमजला इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। वो जो ऐब देखकर भी नफरत नहीं करता, वो जो खताओं पर भी पकड़ नहीं करता, वो जो नाफरमानियों पर भी दुआएं रद्द नहीं करता, वो जो बंदों के सिसकियों का भी साथी है, वो जिसका होना तन्हाई में भी काफी है, वो जिसकी मोहब्बत हर मोहब्बत के आगे नाकाम है, वो जिसे मनाने के लिए एक नदामत का आंसू काफी है, वो जो हमेशा से बाकी है, वही अल्लाह है, वही मोहब्बत है। दुख की बात तो यह है कि हम अपने गमों पर रोते हैं, अपने गुनाहों पर नहीं। हमारा अल्लाह पाक से रिश्ता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने गम, दुख, दर्जा और शिकायत पर रोते हैं, अपने गुनाहों, नाफरमानियों पर नहीं। वरना हमारा अपने गुनाहों पर रोना हमारे गमों का इलाज बन जाएगा। इंतजार करना मुश्किल है, मगर इस इंतजार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेट लो, खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से आजाद कर देगा। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाते, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक लेकर जाता है। ऐसी मंजिल जहां सिर्फ मोजज़े होते हैं। देखो आजमाइश तुम्हें अल्लाह पाक से मिलवाती है, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफ तुम्हें तहज्जुद तक ले आती है, जिंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती है और हर दुख और मुश्किलें तुम्हें जानमाज तक लाते हैं। और अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही सबसे ज्यादा आजमाता है, क्योंकि वो हमें अपने करीब देखना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह पाक है, इसलिए अल्लाह पाक से करीब हो जाएं, सब्र करना सीख लें। अल्लाह पाक सब जानता है, वो जानता है कि आप कब किन वक्तों से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है? फिर भी इंसान अल्लाह पाक को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है? जब तक अल्लाह पाक ना चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह पाक राजी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल नहीं रह सकता। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है, जिसके पास तुम्हें
तुम्हें देने के लिए वसी खजाने हैं, वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजिर है। जिस घड़ी में नसीब संवरता है, कुछ लोग तकिए पर सर रख कर सो रहे होते हैं और कुछ लोग जानमाज पर सर रख कर रो रहे होते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। आपका मुस्तकबिल आपका मुंतजिर है, मुमकिन हो तो इसे रात के पिछले पहर में पा लीजिए। खामोशी खुद एक ऐसी हैसियत है जिसे सिर्फ जहीन लोग ही समझ सकते हैं। यह किसी चीज की मंजूरी या इनकार भी हो सकती है। हमारी जिंदगी में खामोशी के बहुत से मकामात हैं, लेकिन कोई आम इंसान खामोशी की जुबान को नहीं समझ पाता। आपकी मुश्किलात आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर यकीन अल्लाह पाक पर है तो सुनो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं गिरा सकती और ना ही कोई मुश्किल आपको हरा सकती है। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज्यादा सफाक रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हर तरफ अंधेरा है, कहीं मंजिल का रास्ता नहीं मिल रहा। सुनो, सब्र रखो, अल्लाह पाक अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो जरूर रोशनी लाएगा। वो जो नामुमकिन लगता है, तुम्हें देखना एक दिन मुमकिन होगा और तुम्हारा सर सजदा शुक्र में होगा। इंशाअल्लाह मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता, मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमजोर होता है। तुम ऐसे लोगों में ना होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारा रब तुम्हारी परेशानियों से बहुत बड़ा है। जब नजरअंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहत कभी भी आपका खोया हुआ मुकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मजीद तस्लीम से जरूर बचा सकती है। वक्त इंसान को बताता है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कोई कितनी फिक्र करता है, कोई कितनी परवाह करता है, कौन कितना ख्याल रखता है, कौन कितना हमदर्द है, कौन हमें कितना समझता है, कौन कितना सुकून देता है, कौन कितना रुलाता है। हाँ, वक्त सब बता देता है। जरूरी नहीं कि अगर आप किसी का दिल दुखाओ तो वो मुंह से बदबाब की वजह से अल्लाह पाक के सामने रोएगा, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। जब हिम्मत हारने लगो तो बस दिल को इतना समझा लेना कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की रजा है और जो होगा उसमें भी अल्लाह पाक की रजा होगी। पता है हम बेसुकून कब होते हैं, जब हम अल्लाह पाक पर उस तरह से यकीन नहीं रखते जैसे हमें रखना चाहिए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सब्र का सिला इतना भी खूबसूरत हो सकता है कि बदले में सिला देने वाला ही मिल जाएगा। मुझे तो कभी ऐसा गुमान भी नहीं हुआ था कि सब कुछ खोकर भी मुझे सब कुछ मिल जाएगा। यह फिक्र छोड़ दो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि किसी के चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक अल्लाह पाक न चाहे, तुम हर वक्त किसी को मैसर रहकर खुद को क्यों बेइज्जत करवाते हो। अल्लाह पाक से ताल्लुक कायम करो, वो इस दुनिया को तुम्हारे लिए बेमायने कर देगा और फिर यह सब लोग तुम्हें खुद पुकारा करेंगे। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि उसे लोगों के तलक रवैया की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि यह जिंदगी सिर्फ इस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। मुस्तकिल एक जैसे हालात इंसान को थका देते हैं। इंसान की फितरत भी ऐसी है कि वो तब्दीली चाहता है। अगर आज वक्त बुरा है तो क्या सारी उम्र यह बुरी ही रहेगी। याद करो उस वक्त जब तुम्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आई थी, तब भी तुम्हें अल्लाह पाक ने मुश्किल से निकाला और बेहतरीन वसीला बनाया। फिर आखिर कि तुम इतनी जल्दी थक गए हो, क्यों तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हें सुन नहीं रहा, वो तुम्हें देख नहीं रहा। बस तुम सब्र के साथ अपनी दुआ पर कायम रहो। आप किसी को इस बात की इजाजत ही क्यों दे रहे हो कि वो आपको
डगमगा कर सके, कोई आपसे मोहब्बत ना करे, यह उसकी मर्जी, मगर किसी को हरगिज यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आपका एहतराम ना करे। आपके लिए अपनी इज्जत नफ्स अहम होनी चाहिए। आप ऐसे लोगों से फासले पर रहें जो आपकी कदर ना करते हो। आप खास हैं, आप अहम हैं, खुद को यह बताएं और सर उठाकर जिए, और किसी को हरगिज इजाजत ना दें कि वो आपके साथ अपनी मर्जी का रवैया रख सके। सबसे पहले एहतराम, और बस एहतराम। जो इंसान अपने आप में खुश रहना शुरू कर देता है, फिर वो दूसरों से खुशी मिलने की उम्मीदें नहीं बांधता, और जहां आप उम्मीदें बांधना बंद कर देते हैं, वहीं से आप अपने आप को तकलीफ से बचाने का पहला कदम उठाते हैं। आपको हकीकी खुशी वही इंसान दे सकता है जो आपको मुकम्मल तौर पर जानता हो, आपके अंदर को पहचानता हो, आपकी ख्वाहिश, आपके ख्वाब, आपकी हसरतों से आसना हो, आपके साथ हर पल रहता हो। ऐसा इंसान आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा, सिवाय आपके घर के आईने हैं। आईने में क्योंकि कोई भी दूसरा इंसान आपको चाहे जितना मर्जी जान ले, मगर फिर भी आपकी जात के बहुत सारे पहलुओं से आसना ही रहता है। वो पहलू जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। आपका वजूद किसी की दी हुई खुशी का मोहताज नहीं होना चाहिए। अपने वजूद पर खुद हुकूमत करें। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिसे आप बात करना आसान हो, जिससे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो, और जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे, जो आंसू पोंछना जानता हो, जो मरहम बनना और मरहम लगाना जानता हो। अगर आप इंसान हैं तो यकीनन अल्लाह पाक ने आपको सबसे खास बनाया है। जिंदगी में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब सबसे मुश्किल काम अपने आप को जिंदा महसूस करना लगता है। जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं होती जितना हमारे आसपास के लोग उसे बना देते हैं। अपने गम की नुमाइश ना करें, अपने नसीब की आजमाइश ना कर। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा, हर रोज उसे पाने की ख्वाहिश न कर, तकदीर बदल जाएगी। अपने आप ही इंसान मुस्कुराना सीख ले, वजह तलाश न कर। जिंदगी कई ऐसी राहों और मरालों से गुजर कर तुम्हें तुम्हारी चाहत तक लाती है, जिन पर चलने के लिए तुम्हारा दिल मुतमैन नहीं होता, ताकि खुशी से पहले तुम गम की लज्जत जान सको, और हासिल से पहले और हासिल की कदर करना सीख सको। मायूसी और उम्मीद तुम में है। वो कहता है अल्लाह पाक तुम्हारे हालात तब तक नहीं बदलता जब तक तुम वो नहीं बदलते जो तुम्हारे अंदर पोसीदा है। तो जब तक तुम उन चीजों पर खुश रहना नहीं सीखोगे जो तुम्हारे पास है, तो अल्लाह पाक तुम्हें वो कैसे देगा जो तुम मांगते हो। मुआजिजा हर जगह है, यह आंख नहीं है जो उन्हें देखते हैं, बल्कि यह यकीन है जो हर नामुमकिन शय में मुमकिन का होना ढूंढता है। और जो तवक्क रखते हैं उनके लिए अल्लाह पाक वहां से वसीले बनाता है जहां कोई गुमान नहीं जा सकता। और जो फैसला अल्लाह पाक का होता है उसे इंसान अपनी तमाम कोशिशों और वसाइश के बावजूद भी नहीं बदल सकता। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह न करें, मुस्कुराकर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें नई मंजिलें आपकी मुंतजिर हैं। अच्छा सोचे और अच्छा बोले, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबान दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जबाल में बदल देते हैं। बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जैसे वो वक्त गुजर गया वैसे ही इस वक्त ने भी गुजर जाना है, और तुम्हारा गम उतना ही आरजी है जितनी की यह दुनिया जिससे यह मिला है। और यह तो अल्लाह पाक का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और उसके वादे से सच्चा कोई नहीं। जिंदगी में कोई भी मुलाकात फजूल नहीं होती। हर इंसान जिसे तुम मिलते हो वो या तो तुम्हारी आजमाइश होता है या सजा होता है या फिर आसमानी तोहफा होता है। मैंने जिंदगी को आसान बना लिया है, पता है कैसे?
क्योंकि मैंने लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी। यकीन जाने इससे जिंदगी आसान हो गई है। शिकवे शिकायत कम कर दें। जो साथ चलता रहा उसे रोका नहीं, जो रुक गया उसे साथ चलने का कहा नहीं, जिसने हाथ बढ़ाया उसे थाम लिया और जिसने दामन छुड़ाया उसे खुदा हाफिज कह दिया। इसके साथ अल्लाह पाक पर यकीन बढ़ गया और जिंदगी मुतमैन और पुरसुकून सी हो गई। लोग आपकी कदर नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती उन पर मुसल्लत होने की कोशिश करते रहते हैं। जब एक बात आप बार बार दोहराएंगे, लोगों पर इजहार करेंगे, खुद को उनके सामने जरूरत से ज्यादा झुका देंगे, तो वो हमें गिरा हुआ समझ लेते हैं। यह सब हमें अल्लाह पाक के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बंदों के यहाँ इज्जत कम हो जाती है और अल्लाह पाक के यहाँ बढ़ जाती है। पता है इंसान कब बेसुकून होता है? जब वो अपने सुकून का मरकज इंसान को बना ले, जब वो अपनी खुशियों की उम्मीदें इंसान से लगा लेता है। क्योंकि सुकून का मरकज कभी भी ना तो इंसान हो सकता है और ना ही यह दुनिया। दिल का बदल जाना भी एक नेमत है, वाशर्त है कि वो अल्लाह पाक के लिए बदले। दिल का जख्मी होना भी एक नेमत है, वाशर्त है कि वो अल्लाह के लिए जख्मी हो। दिल का तड़पना भी नेमत है, बशर्त है कि वो अल्लाह पाक के लिए तड़पे। दिल का रोना भी नेमत है, बशर्त है कि वो अल्लाह पाक के लिए रोए। दिल का टूटना भी एक नेमत है, बशर्त है कि वो अल्लाह पाक की तरफ रुजू करे। जब आपको कोई मुश्किल आती है तो पता है आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? अल्लाह पाक से बातें करने की। उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में है आप। उससे बात कर लेना, उसके सामने रो लेना ही आपके दिल में सुकून उतार देगा। उससे कहे कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी कर दे, दुआ करे। उससे कहे कि मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, बस आपका साथ ही होना मेरे लिए काफी है। हमें यह जिंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह पाक को राजी करें। अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह पाक को बनाओ। जैसी ख्वाहिश पूरी करने में लज्जत, अल्लाह पाक के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करने की लज्जत उसे 1000 गुना बढ़ा के है। जिसे अपनी मनपसंद चीज पा लेने में मजा, अल्लाह पाक के लिए उस मनपसंद चीज को कुर्बान कर देना ही असल जीत है। कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, पर अल्लाह पाक तुम जैसे हो वैसे ही पसंद करता है। कोई तुम्हें मोहब्बत के लिए चुने या न चुने, लेकिन अल्लाह पाक तुम्हें मोहब्बत के लिए चुन लेता है। तो अब बताओ, क्या अल्लाह पाक की मोहब्बत काफी नहीं तुम्हारे लिए? जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया है, वो तुम्हारे लाख दलाल पर भी तुम्हें सही नहीं मानेगा। लोगों को खुश करके क्या करोगे? मुझसे किसी ने पूछा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कैसे कर लेते हो? मैंने जवाब दिया, मुझे यकीन है कोई भी मुझे रोजाना 5 मरतबा हर किस्म की हालत में मिलना पसंद नहीं करेगा। खुशी में, गम में, कमजोरी में, ताकत में और टूटे हुए हाल में, सिवाय अल्लाह पाक के जो मुझे हर हाल में अपने दर पर बुलाता है। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो उस यकीन के साथ अपने आंसू साफ कर लेना कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह पाक बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अल्लाह पाक की मोहब्बत इंसान को इतना मुकम्मल कर देती है कि फिर दुनियावी मोहब्बत की गुंजाइश ही नहीं होती और फिर इंसान सब्र और इश्क की उस इंतहा पर पहुंच जाता है जहां अल्लाह पाक की रजा के सामने सब कुर्बान कर दिया जाता है। जब तुम अल्लाह पाक को जानने की, उसे ढूंढने की तमन्ना करते हो तो अल्लाह पाक तुम्हारा दिल सुकून ढूंढने में लगा देता है। माथा जब सजदे में जाए, जानमाज पर टिकता है तो आंखें बंद किए दिल से आवाज आती है, सुभान रब्बिल आला। जब तुम्हें अल्लाह पाक को ढूंढने का रास्ता नहीं मिलता, तब अल्लाह पाक खुद तुम्हारे सामने आता है, यकीन बनकर, दिल का सुकून बनकर, तारीख में मोजज़े बनकर और जिंदगी में इत्मीनान बनकर। कितना खूबसूरत लम्हा होता है जब आप जानमाज से फारिग होकर किसी तसल्ली की उम्मीद पर अपना कुरान खोलते हैं और एक आयत पर आपकी नजर पड़ती है। थोड़ी देर पहले थमने वाले आंसू फिर से बहने लगते हैं, जिस वजह से आप जानमाज पर
تکلیف میں اپنے اللہ پاک کے سامنے روئے تھے، اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن پاک آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ دنیا کا انتہا خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے بات کرنے کا کوئی وقت مقرر تھوڑی ہوتا ہے کہ اس وقت کے بعد وہ نہیں ملے گا۔ ایسا تو بس ہم سوچتے ہیں، وہ تو ہر لمحہ ہمارا منتظر رہتا ہے، وہ تو ہمارا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور کب محبت کی گفتگو چلے، ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھے، زندگی سکون میں گزرے گی۔ اس دنیا کی محبت کو جتنا سوچو گے، جتنا چاہو گے، ٹوٹ کر رہ جاؤ گے، کیونکہ دنیا اور دنیا کے لوگ کبھی اپنے نہیں ہو سکتے۔ محبت کرنی ہی ہے تو اپنے اللہ پاک سے کیجئے، جس کو جتنا چاہو گے اتنا ہی سکون ملے گا۔ وہ اللہ پاک کی محبت ہے، بہت سکون دیتی ہے۔ مجھے بھی یہ بات دیر سے صحیح لیکن اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے فیصلے اللہ پاک پر تو چھوڑ دیتے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ وہی ہو جو ہماری خواہش ہے۔ ایک کیسا اعتبار ہے بھلا، اللہ پاک جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے، اللہ پاک جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ ہمارے گمان سے بھی آگے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ پاک یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے، کیا بہتر ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو گے، جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہتر ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکلیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ خوبصورت ہوگا، کیونکہ اللہ پاک ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ آپ کی زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، بس اپنے رب کے لیے وقت ضرور نکالیں، اس سے باتیں کریں، یقین کریں، ایسا محسوس ہوگا جیسے سب کچھ آپ کی جھولی میں آ گیا ہو۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پاک پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، اور پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ حالات کبھی ہماری طبیعت کے مطابق ہوں گے تو کبھی خلاف، تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں سے بہتر ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔